میں یہ کہہ رہا تھا یہ آپ نے نکیل والا سوال پوچھا تھا تو وہ پوچھ لینا کس کے پاس ہوتی ہے تاکہ جو اگلی ڈسکشن ہے وہ ذرا کھل کے ہو جائے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ کھل کے گفتگو ہو تو پھر میرے تے پابندی لگانا چاہتے ہو؟ میں تو تھوڑے نال. السلام علیکم ناظرین. آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے آصف علی زرداری کی تقریر کے دوران خوب ہنگامہ ہوا اور گو زرداری گو اور عمران خان کو رہا کرو کے نعروں سے پوری پارلیمنٹ گونج اٹھی. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور اس اجلاس میں زبردست ہنگامہ آرائی ہوئی. صدر کے خطاب کے دوران ہنگامہ آرائی کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ غلام اسحاق خان صاحب تھے تو ان کے دور میں گو بابا گو کے نعرے لگتے تھے. پھر پرویز مشرف صاحب آئے, ان کے خلاف بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نعرے بازی کرتی تھی. اور اس کے بعد جو بھی صدر آیا تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران ہر اپوزیشن جو ہے وہ مظاہرہ بھی کرتی ہے, ہنگامہ بھی کرتی ہے. لیکن آج جو آصف علی زرداری صاحب کا خطاب تھا اس کے درمیان کچھ نئی چیزیں دیکھنے میں آئیں. اور وہ نئی چیز کیا تھی کہ کچھ لوگ بگل بجا رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ باجا بھی بجا رہے تھے. تو اس سے پہلے سیٹی تک تو ہم نے دیکھا کہ سیٹیاں بجائی جاتی تھی, لیکن اب نئی انوویشن ہے بگل اور باجا. یہ بھی صدر کے خطاب کا ایک حصہ بن گیا ہے. لیکن صدر صاحب نے اپنے خطاب میں کچھ اہم باتیں کی ہیں. ایک انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی بحران ہے اس سے جلد از جلد ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. We have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in the rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation for the uninterrupted sustainable development of our nation. پولیٹیکل پولرائزیشن سے نکلنے کی ضرورت ہے اور وقت بہت کم ہے, تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, جو آج ہی سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر بنائے گئے ہیں اور ان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے نوٹیفیکیشن کیا ہے صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب میاں شہباز شریف صاحب نے. اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے شبلی فراز صاحب کو سینٹ میں اپنی پارٹی کا اپوزیشن لیڈر مقرر کیا اور ان کی پارٹی کی یہاں نمائندگی کریں شیخ وقاص اکرم صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب, کافی عرصے بعد ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں. اچھا شیخ وقاص صاحب, آپ کی پارٹی نے تو شدید ہنگامہ کیا ہے, لیکن جو میسج آیا ہے صدر صاحب کی طرف سے کہ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی ماحول ہے وہ قومی مفاہمت کے لیے بہت سازگار ہے, کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں حامد بھائی, بات یہ ہے کہ یہ باتیں تقریروں میں اچھی لگتی ہیں اور خصوصاً جب آپ خود بھی اس پہ یقین رکھتے ہوں, اور یقین جو لوگ رکھتے ہیں اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیموکریٹک نارمز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے ان چیزوں کی بنیاد خود رکھتے ہیں. ہمارا اس پہ بڑا واضح موقف ہے ہماری پارٹی کا, ہمارے قائد کا, اور وہ یہ ہے کہ بالکل قومی مفاہمت بھی ہونی چاہیے, سب کو مل جل کے پاکستان کے مسائل کا حل بھی نکالنا چاہیے, مگر وہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب حقیقی مینڈیٹ کے لوگ جو ہیں جن کو عوام نے منتخب کیا ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں. جو لوگ آپ کے مینڈیٹ کے چور ہوں, جن لوگوں نے آپ سے الیکشن چرایا ہو, ان پارٹیوں کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں جا سکتا. مفاہمت تو بڑی دور کی بات ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کو اتنا چور سمجھتا ہوں, جو کہ میں بالکل سمجھتا ہوں, اور اس کے بعد آپ میری چوری بھی واپس نہ کریں اور شام کو میں آپ کو ڈنر پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ گپے لگا رہا ہوں. یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا نہیں ہے. ساڈا چور ہی ہوتا جے, وہ چاہے جتنا مرضی نیک پاک ہو کے آ جائے. تو کیونکہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں تو صدر صاحب کی تقریر ایسی تقریر تھی جو اچھی لکھی جاتی ہے. لکھنے والے آپ کو پتہ ہے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور پڑھنے والے پڑھ چھڑتے ہیں جو لکھا ہوتا ہے, بٹ یو مسٹ بلیو ان اٹ, اینڈ آئی ایم شیور کہ دیز پیپل ڈونٹ بلیو ان دا ورڈز دیٹ دے ہیو اٹرڈ. وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں, کیونکہ اگر یقین رکھتے ہوتے تو آپ دیکھیں کہ سارے امیدوار غائب ہو گئے اور ایک مطلب ایک ایم این اے جو ہے وہ ہو گیا, پھر ہمارے کتنے ایم این ایز کے مینڈیٹ چوری ہوئے اور پھر کیسے حلف ہوئے.
फॉर्म्स 47 में क्या हुआ, ये कहानियां इतनी दफा आपके चैनल्स पे चल चुकी हैं, मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। तो अच्छी बात है लेटर स्पिरिट में, मगर उनके मुंह से अच्छी लगती है जो खुद इस पे बिलीव करते हो, जो लोगों के इलेक्शन चोरी करते हो, उनके मुंह से कहानियां अच्छी नहीं लगती। अब शेख वकास साहब, वो जो आपने पहले तनकीद की वो आपकी अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो शेर अफजल मरवत साहब के बयान के हवाले से बात हुई है, तो ये तो बयान मुस्लिम लीग नून ने नहीं ना दिलवाया, ये तो उन्होंने खुद दिया है। आपकी पार्टी ने उसे लाने लातलकी कर दिया, लेकिन वो आज भी कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पे कायम हूं, ये मेरी जाती राय है। आज तो इससे आप नहीं समझते कि आपको और आपके लीडर को नुकसान होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने खुद बताया, शेर अफजल मरवत साहब ने आज पार्टी के इस मौक़िफ़ को बिल्कुल ऑन किया है, क्योंकि पार्टी ने उनके इस बयान को भी डिसऑन किया है, अपने आप को उससे डिसोसिएट किया है, और उन्होंने भी आज कह दिया मुरवत साहब ने कि जी ये मेरा ज़ाती बयान था। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, आज इमरान खान साहब से अडयाला में दोस्तों की मुलाकात हुई और वहाँ खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से एक मैसेज बाहर भेजा है। उन्होंने कहा कि उनके दौर में 2 OIC की कॉन्फ्रेंसेस कामयाब हुई और वो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हमारी गवर्नमेंट गिरने से पहले वो $2 अरब जो मुल्क हमें दे रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता हमारी पार्टी में कि जो हमें इस मुल्क को मजबूत करने के लिए इस हुकूमत को हेल्प कर रहे हैं, $2 अरब दे के वो हमें गिराएंगे। तो ना कोई ऐसी बात है। वी होल्ड देम इन हाई रिस्पेक्ट, वी होल्ड देम वेरी डियर टू आवर हार्ट्स। MBS के साथ वो अपना पर्सनल ताल्लुक़ क्लेम करते हैं, बहुत सी बातें उन्होंने बताई ताल्लुकात के हवाले से। उन्होंने कहा बिल्कुल सऊदी अरब का पाकिस्तान के फ्यूचर के डेवलपमेंट के हवाले से और रीजन के हवाले से एक रोल है, एंड आवर पार्टी उसको रिस्पेक्ट करती है और उसको होल्ड करती है। जस्ट बिकॉज पूरी इतनी बड़ी पार्टी कि किसी एक आदमी ने एक ऐसी ज़ाती राय दी जो अब हमारे दोस्तों के हाथ में आ गई, और मैं कल से देख रहा हूँ कि हर टॉक शो के ऊपर ये दे इंश्योर के जनाब ये बात हो, हमने कह दिया कि हम उसको डिसोन करते हैं, और अगर इसके बाद भी वो ऐसी बातें करेंगे तो पार्टी एक्शन भी ले सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब पार्टी का लीडर इमरान खान ने भी आज कह दिया और कल हर लीडर कह चुका है, इसके बाद इस पे ज़्यादा बहस बनती नहीं है। जहाँ तक खैर साहब ने बात की अनारकी की और मुल्क दुश्मन, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ट्रीटमेंट किया जे। मुल्क दुश्मनों के साथ भी ऐसे नहीं कि मुल्क दुश्मनों को, जासूसों को तो आप चाय भी पिलाते हैं, आप उनकी मिन्नतें भी करते हैं, फिर आप उनको सजाएं भी नहीं देते हैं, फिर आप सब आपने तो जितनी इज्जत और रिस्पेक्ट से आप मुल्क दुश्मनों को ट्रीट करते हैं, आपने तो हमें उस इज्जत के भी काबिल कोई नहीं समझा, आपने तो हमें उस ट्रीटमेंट के भी काबिल नहीं समझा। आप लोगों के लीडरों के साथ भी होगा यही आर्गूमेंट होता है ना, सानू भी फड़े आती, सानू भी अंदर दिता सी। गिनती कर लो कितने अंदर दिते सन, गिनती कर लो कितनों के कारोबार खत्म हुए थे, गिनती कर लें कितनों के माएँ बहनें बेटियां और 4 दीवारियों में लोग, गिनती कर लो, कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन ही कोई नहीं है, शिद्दत का कंपैरिजन नहीं है, जबर का कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। होती हैं गलतियां, सबसे होती हैं। एक मैं और अगर आप इजाज़त दे दें जुमला, मांडवीवाला साहब ने कहा कि जी मैं इनको सियासत नहीं समझा, मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है मांडवीवाला साहब के साथ, और इसी एहतराम से इनको कहूँगा यू आर राइट, आई एग्री विद यू। हम इस उम्र में जाके एक दूसरे को सियासत हामिद भाई नहीं सिखा सकते, बट देन ही सेड कि वी हैव टू डिसाइड कि अब करना क्या है। आई एग्री 100%, वी हैव डिसाइडेड, एंड व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि बस अब वो कीमत अदा कर रहा है, अंदर बैठा हुआ है, और यही डिसीजन है कि अब मुनाफिकत अगर पहले थी तो नहीं होगी, अगर कमजोरी थी तो नहीं होगी, ये चोरों से हाथ मिलाने वाला काम अगर माजी में था सियासत के नाम पे तो नहीं करेंगे, तो नहीं करना। और उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत क्या है कि खान अंदर पड़ा है। ठीक है, बंदे तो आपको पता है ना, जहाज आती है, एयर एम्बुलेंसेज आती हैं, एन अंगूठे पे खा के मुल्क जो बाहर चले जाते हैं, वो दूसरी गल है, बाद अपनी फैमिली टच कर देंगी उन्होंने, वो अलग गल है, मगर अगला कीमत दे रहा है, और वो ये कहता है, अगला जो अंदर बैठा है वो कहता है मैं कीमत दे दूंगा। We have to decide, we have decided, तुसी अपने फैसले कर लो। इस मुल्क में एक आइन है, एक कानून है, एक रियासत है, अगर किसी को भी आपने सजा देनी है तो आइन और कानून के मुताबिक सजा दें। और जो शेख वकास अकरम साहब ने बात की है कि अगर इनके लोग जो हैं वो जेलों में होंगे और सदर साहब कहेंगे कि एक दूसरे के साथ मुफाहमत कर लो, तो थोड़ा मुश्किल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क का सदर और पंजाब की वज़ीर आला आवाम के वोट्स पर डाका डालकर आवाम का मैंडेट चोरी करके जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हों, तो फिर यही होगा जो आज हुआ। वो लोग जो आवाम के मैंडेट से आए हैं, वो लोग जिन्होंने आवाम के वोट्स पर डाका डाला है, उनका जीना मुहाल करके रखेंगे। आज आसिफ अली जरदारी जिस तरह से तकरीर कर रहे थे, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी को आवाम का मैंडेट चोरी करके आवाम के वोट्स पर डाका डालकर इस मुल्क पर जबरदस्ती सदर बनाकर मुसल्लत किया गया है, आज वो इस तरह से भाषण दे रहे थे जैसे उन्हें आवाम की बहुत ज्यादा फिक्र है। हालांकि नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो औरतों के मजे लूटना जानते हैं, जो आवाम का
माल लूटना जानते हैं, अवाम का मैंडेट चोरी करना चाहते हैं और अवाम का मैंडेट चोरी करके ही जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं। इसके अलावा इन्हें अवाम के मफादात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये वो पुराने बादशाहों की तरह हैं जिन्हें अवाम पर राज करना सिर्फ पसंद होता था। इन्हें लोगों की दुख दर्द का कोई भी अंदाजा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि ये अवाम पर राज करें और ये पूरी रियासत उनकी मलकियत है और इसमें रहने वाले लोग इनके महज गुलाम हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी ऐसी बादशाहत की ही गंदी फितरत नजर आती है जो पाकिस्तान को सिर्फ अपनी मलकियत समझते हैं और पाकिस्तान इन्हें विरासत में मिला है। 25 करोड़ अवाम इनके नजदीक कीड़े मकोड़े हैं, इनके गुलाम हैं। इसके अलावा ये अवाम को कुछ नहीं समझते। अगर अवाम को ये इस तरह से ट्रीट करेंगे तो फिर अवाम का ऐसा ही रिएक्शन आएगा जैसा आज आया। नाज़रीन, पहली बात तो ये कि सदर आसिफ अली जरदारी का आज तकरीर करना बनता ही नहीं था और अगर उन्होंने तकरीर की भी थी तो जिस तरह से वो अवाम का मैंडेट चोरी कर इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं तो फिर उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए था कि अवाम की तरफ से ऐसा ही रद्द-ए-अमल सामने आएगा, क्योंकि जिस मुल्क पर गैर आईनी सदर को मुसल्लत कर दिया जाता है तो फिर उस पर अवाम की तरफ से ऐसे ही रद्द-ए-अमल आना एक फितरी अमल है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।